you all are fine. Welcome back in the chemistry class. Today we will discuss class 12 chapter amines, and in this chapter we will discuss electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions generally takes place in the aromatic amines. Aromatic amines में ही होता है, ठीक है ना. In aromatic amines, NH2 group is present, which is ortho and para directing group, and it is the activating group. That is it means it activates the benzene ring for electrophilic substitution reactions. Electrophilic substitution reactions को वो एक्टिवेट कर देता है, यानी कि कोई भी ग्रुप आएगा तो बेंजीन रिंग पर जल्दी अटैच होगा. इट टेक्स प्लेस बाय द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस के थ्रू होता है. कैसे होगा? सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है नाइट्रोजन एटम का, ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना. तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है नेक्स्ट कार्बन पे. तो इस वाले कार्बन पे आपका ये नेगेटिव चार्ज आ गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. नाउ दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स मूव्स टू द नेक्स्ट पोजीशन. इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा. देन दिस कार्बन 5 इलेक्ट्रॉन्स मूव टू द नेक्स्ट कार्बन एटम. ये आ गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस चार्ज के साथ. Now next, in the next case, these electron pairs moves between these two carbon atoms. Then these electrons move to the next carbon atom. ये next carbon पे आ गया. Finally, these electron goes to this position, and this electron goes to the pi electron goes to the nitrogen atom. And you can see that from these resonance structure, from especially second, third, and fourth structure, that there is a negative charge at ortho and para positions. So that the electrophile can attack at these positions easily. आराम से अटैक कर सकता है. That's why we can say that benzene ring is highly activated. Benzene ring आपकी highly activate हुई है. Now, if the bromination is carried out, अब हम bromination करवाते हैं. bromination में क्या होगा? आप aqueous Br2 से suppose reaction कराते हो, then तीनों ऑर्थो पोजीशन, दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, तीनों H आपके रिप्लेस हो जाएंगे बाय द Br atom. 3H 3Br will form 3HBr and 3 bromine atoms will attach on the ortho and para position. इस ortho और para पे attach हो जाएगा and it is the white PPT. 2,4,6 tribromo phenol, 2,4,6 tribromo aniline will form and it is the white PPT. Clear? If we desire only ortho and para product, हमें नहीं चाहिए 2,4,6 tribromo, तो अब क्या करें? Then the reactivity of the NH2 group has to be controlled. NH2 ग्रुप की रिएक्टिविटी को आपको कंट्रोल करना पड़ता है. उसको कंट्रोल करने का एक मेथड ये होता है कि बाय एसाइलेशन. आप उसका एसाइलेशन करवा सकते हैं. उसके लिए एसाइलेशन के लिए आप एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज करो या एसिटाइल क्लोराइड को यूज करो. मैंने यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड को यूज किया, CH3COCl. Then 1H 1Cl combine together to form HCl. HCl रिलीज हो गया और आपका कंपाउंड बना NHCOCH3. बेंजीन के ऊपर ये ग्रुप हो जाता है अटैच. इसको बोलते हम एसिटेनिलाइड. ACETANILIDE. This is acetanilide. In this case, the reactivity of the NH2 group has been controlled because these lone pairs are involved in the resonance with the CO group. ये जो CO group है इसके साथ lone pair involved हो जाते हैं resonance में, and it cannot activate highly the benzene. Only it can be a little bit. Now, if the bromination is carried out, then bromine group attached at ortho and para position only. Ortho और para पे जाएगा, आगे कहीं पे ये attach नहीं होगा. And acetyl group can be removed by hydrolysis. आप सिंपली इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो एसिटाइल ग्रुप जो आपका था दैट कैन बी रिमूव. ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इस साइड H अटैच हो जाएगा, इस साइड OH. देन यू विल गेट NH2 group and Br. means ortho position पे Br था, para पे भी ortho and para bromo aniline will form get along with CH3 COOH. चाहो तो CH3 COOH लिख सकते हो. ये इसका साइड प्रोडक्ट है. Now the next topic is nitration. In nitration some problems arises. Why? What are the problems? Problem is there. First of all, under strong acidic condition, nitrobenzene generally oxidizes into the nitro products. Aniline does not generally oxidizes into the nitro products. Aniline का oxidation हो जाता है. एक प्रॉब्लम तो ये आती है. दूसरी प्रॉब्लम मोरओवर ये है कि ये आपका एसिड है और ये बेस है. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए सोल्ट. सोल्ट बना देते हैं. पहले तो रिएक्शन ही नहीं होती.
इन द सेकंड प्रॉब्लम ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रो प्रोडक्ट्स बन जाएंगी जो हमें नहीं बनाने थे फिलहाल। NH2 को तो ग्रुप को एज इट इज ही प्रिजर्व करना था ना, वो भी प्रिजर्व नहीं हुआ। थर्ड प्रॉब्लम, अंडर कंट्रोल कंडीशंस ऑर्थो प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट एज वेल एज मेटा प्रोडक्ट इज आल्सो फॉर्म। यदि हम तीनों कंडीशंस को देखें तो इस कंडीशन में ये आपका मेटा प्रोडक्ट भी बन रहा है। अब ये नई प्रॉब्लम आ गई, जनरली मेटा प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड, आइदर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म और मेटा प्रोडक्ट इज फॉर्म, बट इन दिस केस अलोंग ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मेटा प्रोडक्ट इज आल्सो फॉर्म। मेटा भी बन रहा है साथ में, जो आज तक नहीं बनता था। इस प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। 47% क्वांटिटी में है, पैरा प्रोडक्ट इज 51%, ऑर्थो प्रोडक्ट इज 2%। ऑर्थो को तो एक बार हम बोल भी सकते हैं इसको नेगलेक्ट कर दो, पर मेटा प्रोडक्ट को कैसे बोलते हैं नेगलेक्ट, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द 47% क्वांटिटी। Therefore, to control the reactivity of the NH2 group, we have to acetylation of NH2 group। NH2 का acetylation ही आपको करना पड़ेगा। NH2 का acetylation करेंगे, then 1Cl 1H, HCl will be removed and the corresponding compound NHCOCH3 is formed, which is again acetanilide। In acetanilide, the reactivity of the NH2 group has been controlled by the acyl group। ये जो CO ग्रुप होता है रेजोनेंस के थ्रू रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसा अभी आपको बताया था। Now, if the nitration is carried out, then para product is formed। जनरली मेजर यही बनता है, ऑर्थो माइनर बनता है। Finally, acetyl group can be removed by the acetylation या acylation कर दो आप। Then 1H attached on the nitrogen atom and OH group attached on the CH3CO group and the compound formed is para-bromelain plus CH3COOH। ये आपका साइड प्रोडक्ट हो गया, ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया। मींस आपको पैरा-ब्रोमोएनिलीन बनाना है तो आपको एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर, नाइट्रो आना था यहाँ पर NO2। पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट यदि आपको बनाना है तो पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाने के लिए आपको पहले एसिटाइलेशन कराना है, उसके बाद नाइट्रेशन, आफ्टर दैट हाइड्रोलिसिस, सो दैट द एसिटाइल ग्रुप कैन बी रिमूव्ड। पहले आपको दोबारा सुन लो क्या करना है, पहले आपको एसिटाइलेशन करना है, उसके बाद आपको नाइट्रेशन करना है, नाइट्रेशन करने के बाद आपको हाइड्रोलिसिस करना है, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट कई बार बच्चे इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं और सोचते हैं ये बन जाएगा, बनेगा, बट आपका ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट के साथ साथ मेटा भी बनेगा, जो कि मेटा नहीं बनना चाहिए था। दूसरी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, ऑक्सीडेशन हो जाता है, NO2 ग्रुप ही NH2 ग्रुप ही NO2 में चेंज हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम, ये एसिड है और ये बेस है, तो दोनों मिलकर सॉल्ट बना देते हैं, रिएक्शन हो ही नहीं पाती, फिर प्रॉब्लम ये नहीं आती है। नेक्स्ट इज द सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में भी सेम प्रॉब्लम आती है। ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका बेस है, लुइस बेस है, दोनों कंबाइन होकर ये आपका इस तरह का सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं। NH3 पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव। इट इज द एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इट इज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट विच ऑन हीटिंग लूजेस H2। एक H2 यहाँ पे आप कह सकते हो कम हुआ, कैसे? 1H, 1 ऑक्सीजन एंड 1H फ्रॉम द पैरा पोजीशन, दिस पैरा पोजीशन, 1H, 2 and 1 oxygen, H2 will remove and the SO3H group attached on the para position। The compound formed is sulfanilic acid, इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड और पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। पैरा पे एमिनो बोल दो और बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन, डाइपोलर आयन इन द एक्वस मीडियम। ऑटोमेटिकली ये H आयन गेन कर सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक NH2 ग्रुप इज बेसिक नेचर, इज इन द बेसिक नेचर, और SO3H आपका एसिडिक नेचर का होता है। ये हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है। देयरफॉर NH3 पॉजिटिव एंड SO3 नेगेटिव कंपाउंड इज फॉर्म व्हिच इज नोन एज द ज्विटर आयनिक फॉर्म। सल्फेनिलिक एसिड बना पहले, लेकिन वो बाद में ज्विटर आयनिक फॉर्म में चेंज हो रहा है, ध्यान रखना है इसको आपको। इट इज आल्सो द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आती है हमारी फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बट एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, आइदर एसाइलेशन और एल्काइलेशन। प्रॉब्लम सुनो, फिर वही प्रॉब्लम आ रही है। एनिलीन इज ए लुईस बेस। एनिलीन आपका लुईस बेस होता है जो आप डिफरेंट यूज करोगे, एंड द एनहाइड्रस AlCl3 used as a catalyst in the Friedel-Crafts reaction behaves as a Lewis acid। ये आपका लुईस एसिड है and this was Lewis base and both combine together to form a salt। दोनों के दोनों कंबाइन कर जाते हैं और एक सॉल्ट फॉर्म कर देते हैं। सॉल्ट फॉर्म होने का नुकसान ये हो गया कि अब ये बेंजीन की जो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी ना, वो लॉस हो जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के इस तरह से सॉल्ट बनाने में यूज हो जाता है,
और आपका सोल्ट बनने के बाद बेंजीन को एक्टिवेट करने वाले लोन पेयर ही इन्वॉल्व हो गए, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इट कैन नॉट एक्टिवेट द बेंजीन। जब बेंजीन का एक्टिवेट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन आपकी नहीं होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से करना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, आज हमने फिनिश की हैं, इनको अच्छे से देखिए। अब आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी क्योंकि मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।